Hello students. In this video, we are going to study what is regression analysis. For that, the previous videos of correlation analysis you should see. Right. Now we'll see what do you mean by regression analysis. In case of correlation, we have seen the relationship between two variables. How the two variables, for example, x and y, how these variables are related to each other, whether there is a positive relationship, negative relationship, or there is a no relationship. This is what we have seen in case of correlation. So through correlation, we just found out the relationship between both the variables, right? Now, in case of regression, what we are going to see is with the help of regression, we can calculate the average relationship between two variables. This is what we are going to do in case of regression, right? And with the help of this regression analysis, what we can do is we can find out the relationship between two variables. For example, the if we are height of father and height of son. So in case if the height of father is known, we can find out the height of son, which is unknown. Yeah, simply we can say this particular variable is a known variable. When we have the knowledge about this particular variable, what is the height of the father, that particular variable is known as independent variable. उसको हम क्या कहते हैं? जिस वेरिएबल के बारे में हमें जानकारी है, उस वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. And on the base of this independent variable, we'll be finding out the height of the sun, which is known as unknown variable. और otherwise हम क्या बोल सकते हैं? Dependent variable. Dependent इसलिए बोलते हैं because this variable depends upon this variable. On the base of this variable, height of father, on the base of this variable, we are going to find out the height of sun. ठीक है? This is what we are going to study. So in case of regression analysis, we are going to study about two variables known as dependent and independent variable. Independent of the changes of origin and scale.
इसको डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन्ड वेरिएबल बोलते हैं। Dependent variable is otherwise known as ठीक है, ये आ गया ना। सम इधर देखते हैं। इक्वेशन एनालिसिस का एक क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3
So we will see the first method known as direct method. Under direct method, how we can go for computing regression equations, right? So this is what we are going to see now. First one. First method. So let us find out calculation of two regression equations. Two regression equations means what? Regression equation of x on y and y on x. Okay, calculation of two regression equations. This is what we are going to find out now. So before that, you need to be clear what are the values you have to find out. Like for example, x and y, I'm just writing just a rough work I'm doing here, a plus by. So in order to find out these two normal equations, xy na, right, plus b summation of y, first equation, and summation of not y, sorry, summation of x equal to na plus b summation of y. Next equation is xy is equal to a summation of x summation of y plus b summation of y square. Right, this is your second equation. So likewise for x also you have to find out. So यहाँ पे why I have written this is, first of all you have to write down the formula, okay, uh, for x as well as for y, so that you can find out what are the values you have to find out. So यहाँ पे आप देख सकते हो, you need summation of x, you need summation of y, ये दोनों का टोटल आपको निकालना है, ओके. यू नीड समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, उसी तरह वहां पे आपको एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, यू कैन सी व्हाट आर द वैल्यूज विच इज बीइंग रिक्वायर्ड. समेशन ऑफ एक्स आपको चाहिए, समेशन ऑफ वाई आपको चाहिए, समेशन ऑफ एक्स चाहिए, समेशन ऑफ वाई चाहिए. देन यहाँ पे वाई स्क्वायर चाहिए तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आपको चाहिए, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर चाहिए, एंड यू आल्सो रिक्वायर summation of xy, summation of xy. तो these are the values which you have to find out in the table. तो already x and y is there, आपको सिर्फ टोटल करना है उसका, ठीक है. तो मैं आपको कितना निकालना है, 1 1 2 3 columns more I have to add. So I'll add 3 more columns. Insert to the right, insert to the right, and insert to the right. Right. Okay. इतना कॉलम मुझे ऐड करना है, right? So the total, यहाँ पे summation of x I am going to write. I'll just use the pen. So यहाँ पे आप टोटल कर लीजिए, समेशन ऑफ एक्स कितना आया लिख लीजिए, समेशन ऑफ एक्स आपका आया है, सो टोटल करने से you'll get 30. लाइकवाइज समेशन ऑफ वाई भी टोटल कर लीजिए 40. यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर मीन्स व्हाट, दिस डबल करना है, 6 6 36, 2 2 4 10 10 100 4 4 16 8 8 64. तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, टोटल करिए 220 आएगा आपका. देन वाई स्क्वायर, इसको डबल करिए, वाई स्क्वायर 9 9 81 11 11 121 5 5 25 8 8 64 एंड 7 7 49. ठीक है, ये हो गया आपका समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 340. ये वैल्यू भी मैंने लिख दिया. अब देखेंगे एक्स और वाई. ये दोनों को यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, 6 9 जार 54, 2 11 22, 10 5 50, 4 8 32 एंड 8 7 56. ठीक है, इसको आप टोटल कर लीजिए, समेशन ऑफ एक्स वाई. देखिए यहाँ पे आपका जो वैल्यूज है 6 2 बहुत छोटा वैल्यू दिया है, इसीलिए हम ये मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं. जनरली व्हाट हैपन, आइदर वी गो फॉर एक्चुअल मीन मेथड और हम एज्यूम मीन मेथड में जाते हैं. एक्चुअल मीन राउंड फिगर में नहीं आया तो वी कैन गो फॉर एज्यूम मीन मेथड, राइट. सो ये आपका हो गया. तो यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या निकालना है. फर्स्ट यू व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. लेट अस I'll just change the pen. ठीक है, मैं फर्स्ट आप यहाँ पे लिखती हूँ. पहला हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई. ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई. व्हाट इज योर फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला लिख लीजिए. द मेन इक्वेशन इज x इक्वल टू ए प्लस बी वाई. ये आपको फॉर्म करना है, ए प्लस बी वाई फॉर्म करना है, और y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्म करना है. सो यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टू कांस्टेंट्स a and b, to
मैंने जैसा पहले लिखाया था वैसे ही लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ बता देती हूँ, टू नॉर्मल इक्वेशंस need to be solved the two normal as follows, right? Yeah, following two normal equations you can write, ऐसा लिख सकते हैं। So क्या करना है आपको, मैंने बताया no need to mug up। आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन will be the summation of this, just a के साथ आपको n ऐड करना है, ठीक है ना। n को पुट करना है, you have to multiply n। तो ये हो गया summation of x n a, देखिए प्लस b summation of y, ये जो वेरिएबल का समेशन होगा। नेक्स्ट कौन सा है, इसमें हम क्या करेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ y प्लस बी समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि हम लोगों को नेक्स्ट पेज में आराम हो। x कितना आया 30 आया, y कितना है आपका 40 है, देन एक्स स्क्वायर इज योर 220, y स्क्वायर आपका 340 और एक्स वाई इज योर 240, जस्ट ठीक है। सो वी कैन पुट दिस, क्या करेंगे हम, अब हम लिखेंगे substituting the values of substituting the values given in table, ये तो substituting the table above table values, ठीक है। about substituting the table values in the above two normal equations comma we get, ठीक है। जैसे लीनियर इक्वेशन आपने स्कूल में पढ़ा होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट इट इज। सो यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ एक्स मैं लिखती हूँ, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स कितना है 30, एन एन इज हाउ मच, एन का एन कितना नंबर ऑफ वैल्यू दिए देख लीजिए, दिस इज योर 1 2 3 4 5, एन आपका 5 है, ठीक है। राइट डाउन 5, एन आपका है 5, बता देती हूँ, एन इज 5, और ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्लस समेशन ऑफ वाई कितना है आपका 40, क्या लिखोगे 40b, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। एक्स वाई इस सेकंड इक्वेशन में देखिए एक्स वाई है, एक्स वाई लिखिए, एक्स वाई कितने 214, ठीक है। 214 इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई इज हाउ मच 40, लिखोगे 40a प्लस समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है आपका 340b, 340b, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए और बी, आइदर ए को इक्वेट करना है या बी को बराबर करना है, ठीक है। तो लेट अस सी दिस हाउ वी कैन डू, ठीक है। अभी देखिए 5 और 40 इज देयर, वी कैन सी 5 एंड 40 इज देयर, लेट अस टेक डिफरेंट कलर। अभी आप ये देखिए 5 और 40 को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, देन विल बी सब्सट्रैक्टिंग, इक्वेट को बराबर करके इक्वेट करेंगे, देन हम उसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, वी विल बी सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है। तो हाउ वी हैव टू डू, लेट्स सी। हम इक्वेट करने के लिए इसमें इसको 40 लाना है, 40 लाने के लिए ये पूरा इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, इट नीड टू बी मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। लेट अस गो फॉर दैट सेम, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट है, तो लिखिए 1 बाई 8 एंड सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन को उससे माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब ये वाला इक्वेशन को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि अभी इसको हम लोग चेंज करके वी विल मेक इट इक्वेशन 3, ठीक है। इसको हम 3 8 के साथ वी विल मल्टीप्लाई एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गिव इट अ नेम थर्ड इक्वेशन। देखिए इसको मैं इंटू कर रही हूँ 8 से, 30 इंटू 8 इज 240, ठीक है। 5 इंटू 8 इज 40, 40a प्लस 40 इंटू 8 इज 320, 320b। तो ये हो गया आपका ये इस इक्वेशन को मैंने तीसरा कर दिया, क्योंकि वैल्यूज चेंज हो गए तो आई हैव चेंज्ड द नेम ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। नाउ रीराइट दिस इक्वेशन को लिखिए यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन है 240 40a प्लस 340b, इसको हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन, ठीक है।
दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इट. इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए जब व्हेन यू गो फॉर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट विल हैपन, द साइन विल चेंज. द साइन विल चेंज. देखिए यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, एंड ये भी माइनस हो जाएगा. दिस विल गेट कैंसल. नाउ ए का वैल्यू गया, तो 240 माइनस 214 इज 26. 240 बड़ा है तो प्लस आएगा, प्लस 26 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 320 340 माइनस में है, तो 340 इज बिगर वैल्यू, तो -20, -20 b. तो therefore b is equal to 26/20. दिस माइनस इज देयर, देखिए माइनस डाल दिया मैंने, विच इज इक्वल टू -1.3. therefore b का वैल्यू आपको मिल गया -1.3. देखिए ब्यूटिफुली यू गॉट द वैल्यू ऑफ b. ठीक है. सो नाउ अभी यहाँ पे हम लोगों को a का वैल्यू, b का वैल्यू मिल गया, तो नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट. अभी हमारे पास जो इक्वेशन है, विद दैट इक्वेशन आइदर इन वन और इक्वेशन टू, हम लोगों को इक्वेशन वन इज स्मॉल, नो. आप देख सकते हो, देखिए इक्वेशन वन क्या है, बहुत छोटा है. देखिए दिस इक्वेशन वन इज स्मॉल, तो वो इक्वेशन में विल बी डूइंग इट. ओके, फर्स्ट इक्वेशन विल बी रीराइटिंग एंड विल बी फाइंडिंग आउट द वैल्यू कोई भी इक्वेशन में, आइदर वन और टू. वी हैव फॉर्म टू इक्वेशंस, तो इन फर्स्ट इक्वेशन वी कैन क्या लिखेंगे आप, सब्स्टिट्यूटिंग substituting the value of equation value of b in equation 1, we get the value of a. आराम से हम निकाल सकते हैं. ठीक है, अभी जस्ट रीराइट द इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू क्या था, 30 इज इक्वल टू 5a प्लस 40b. ये आपका पहला इक्वेशन है. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, वी विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ b एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. तो लिखिए 30 इज इक्वल टू 5a प्लस 40b. कितना आया, b आपको मिला है 1.3. ये मैं लिख दूंगी -1.3. ठीक है, सो 30 इज इक्वल टू 5a प्लस, इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा आपका -52. ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, सिंस इट इज माइनस, नो, सो मैंने जस्ट पुट इन ब्रैकेट. सो देखिए यहाँ पे 5a है, 30, if I am bringing it here, it will be plus 52 is equal to 5a, right? So ultimately 5a equals इसको ऐड करने से कितना आएगा, 82. therefore a equal to 82 divided by 5, which is equal to 16.4. which is equal to 16.4. ठीक है, तो therefore the regression equation of x on y is, क्या वैल्यू था आपका जो हमने लिखा था पहले, a प्लस बी वाई. बस इसको आपको फॉर्म करना है. ठीक है, ये अभी आपने फॉर्म कर दिया. x लिखिए, a का वैल्यू कितना है 16.4, राइट डाउन 16.4 प्लस b का वैल्यू कितना आया आपका -1.3y. ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 16.4 माइनस 1.35. अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन प्रिडिक्ट. तो दिस इज योर आंसर फिगर, ये आपका आंसर है. अभी y का वैल्यू यू आर हैविंग, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. दिस इज द इक्वेशन व्हिच यू हैव टू फॉर्म. ठीक है, so this was your regression equation of x on y. Now you have to find out the regression equation of y on x. So let us go for the second one. Regression equation of, table आपने एक बार बना लिया, regression equation of y on x. देखिए अभी y on x को आपको निकालना है. कैसे निकालोगे, y is equal to a plus bx. ये आपका मेन इक्वेशन है. ठीक है, फिर दोबारा वही करना है. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ two constants a and b, we have to solve the two normal equations. First normal equation is the summation of y is equal to n a plus b summation of x. सेकेंड में हम x को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ये समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर. ध्यान रखिए, देयर इज नो कंफ्यूजन. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y मतलब क्या है, आपके पास y नहीं है, क्वेश्चन मार्क, x है, तो राइट हैंड साइड में सारा x आएगा. उसी तरह x on y मीन्स राइट हैंड साइड में सारा y आएगा.
लाइक दैट यू कैन मेमोराइज, ठीक है, उस हिसाब से आप उसको मेमोराइज कर लीजिए। सो यहाँ पे ऑल टेबल वैल्यूज वी आर हैविंग, ठीक है। सो जस्ट इक्वेशन हम फॉर्म कर देंगे, ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। सो सेम आपको जैसे मैंने वहां पे लिखा है तो सेंटेंस द सेम यू हैव टू रिप्रोड्यूस, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज अबाउट टेबल वैल्यूज वी गेट, ओके। तो आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू, सबमिशन ऑफ y का वैल्यू इज 40, 40, n का वैल्यू इज 5, 5a प्लस समेशन ऑफ x का वैल्यू इज 30, 30b, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन xy इज 214, यहाँ पे आपका a समेशन ऑफ x है दैट इज 30a प्लस 220, x स्क्वायर इज 220, राइट, 220b, ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इक्वेट करना है, जैसे वहां पे 8 से मल्टीप्लाई किया, अभी यहाँ पे 30a है, 5a है, तो वी कैन इक्वेट दिस a, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे, जैसा वी हैव सीन देयर, राइट। सो सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 60 इंटू सॉरी 40 इंटू 6 इज 40 इंटू 6 इज 240, ये हो गया आपका 30a, 6 3 ज़र 18, 180b, ठीक है, ये हो गया 180b, ये मैंने कर दिया थर्ड इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन को मैं लिखूंगी, इससे माइनस कर दूंगी, एज इट इज उतारिए वो इक्वेशन, प्लस 220b, ठीक है, सेकंड लिख दिया। आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, दैट्स नो इशू, ठीक है, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर इन ऑल द केसेस। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू साइन चेंज द साइन, तो दिस गॉट कैंसिल, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 240 माइनस 214 इज 26 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आया, 180 एंड 20 40, दैट 2 इन माइनस माइनस 40b, ठीक है। तो b इज इक्वल टू माइनस 26 डिवाइड बाई 40, therefore b is minus 0.65, ये आंसर भी you got, you see. So now we can substitute the value, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो लेट अस रीराइट द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या था, 40 इज इक्वल टू 5a प्लस 30b, ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन, तो इसी में हम वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ b एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तो 40 इज इक्वल टू 5a प्लस 30 इंटू 0.65 माइनस में है, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। 40 इज इक्वल टू 5a minus 19.5, therefore a is equal to, therefore uh, अभी यहाँ पे 40 है, यहाँ आ जाएगा तो 19.5, ठीक है, therefore 5a is equal to 40, ये आ गया, जस्ट यहाँ कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो therefore 5a is equal to 59.5, right, तो therefore a is equal to 59.5 divided by 5 which is equal to 11.9, तो ये मिल गया आपको 11.9, ठीक है। अब आपके पास a भी है और b भी है, you have got both the values a and b, so therefore ये कितना मिला आपको, a is 11.9 and b is minus 0.65, ठीक है, 11.9 and 0.65, तो therefore now अभी you are going to write the solution, therefore the regression equation of y on x, ठीक है, therefore the regression equation of y on x is y is equal to a plus bx ना, तो लिखिए y, a का वैल्यू कितना है 11.9, ठीक है, b का वैल्यू कितना माइनस है, तो मैं यहाँ माइनस ही कर देती हूँ, माइनस 0.65x। इफ यू वांट यू कैन शो वन मोर स्टेप, ठीक है ना, यहाँ पे आप एक और स्टेप दिखा सकते हो, जैसे प्लस पुट करिए माइनस 0.5, उसके बाद ultimately this result only you have to show. So both the equations you have seen how we are going to compute in case of direct method. In case of direct method, what we are doing is we are using the direct values of x and y. We are finding out x, we are finding the total of x, we are finding out the total of y, we are squaring the square x and we are squaring y, we are taking
we are multiplying x and y. So these are the values which we need in order to find out the regression equations using direct method. I'm sure you're clear in this, so you can solve more sums. We will see the um, regression equations using arithmetic mean method and assume mean method. Right? Thank you.